Hello. इंद्र बहुत ही इतनी सिंपल उसमें टॉपिक हेलो हेलो तरीम Assalamu alaikum, ma'am. वालेकुम सलाम. How are you? Fine, thank you. How are you? I'm fine, thank you. Hello Durdana. Hello Rabia. Hello Shaza. Hello, ma'am. How are you? I'm good. How are you? Fine, thank you. So, hello Durdana. Hello, ma'am. How are How you? are you? I'm fine. How are you? I'm fine too. Thank you. Hello Rabia. Hello, ma'am. Hello Beta. How are you? I'm fine. How are you? I'm fine, thank you. Hello Zamran. Assalamu alaikum, ma'am. Walaikum salam. How are you? Fine, ma'am. What about you, ma'am? I'm fine, thank you. Okay, Hadi is here. Hello, Hadi. Okay. Okay, let's start, right? What were we studying last time? We talked about, hello? What are we studying? Can anyone do a small recap? Hmm? So we are talking about the matrix operator, right? We talked about the J operator. We talked about J plus. We talked about J minus. We talked about JZ. We talked about the S operator. Who is Huawei 10 Lite? Who is this? I don't know this person, and he wants to join the meeting. Can you tell me who is this? I don't know this. I've not seen this person before. Can you guys help me with this? Hello.
Yes, ma'am. ये कौन है? कौन मैम? ये इसका आईडी जो है वावे मेट है। ये कौन है? क्योंकि मेरे पूछता क्लास हूँ में तो इससे, हाँ व्हाट्सएप ग्रुप में ना पूछता हूँ कौन है ये। मतलब कि क्लास में से कोई होगा ना, जाहिर बात है, क्योंकि मीटिंग आईडी तो उसी के पास होगी। फिर उससे पूछता ना, वो अगर उस नाम से हो तो फिर आप ऐड कर लीजिए बस। पूछ लो ये कौन है, क्योंकि आई कैन नॉट लेट इन समवन हु आई डोंट रिकॉग्नाइज। ठीक है, मैम सात्विका। कौन है? इसका सात्विका। इसका नाम क्यों चेंज हो गया? इसको को अपना नाम ठीक करके आए। ओके मैम, मैं कहती हूँ आई गेस वो फोन से आने की कोशिश कर रही है, इस वजह से ऐसा आई हो डोंट रहा है। नो, ये पहली क्लास तो नहीं है, पहले ही अपने नाम से आती होती है। Okay, let's continue with the class. Okay, अगर वो अपने नाम से आएगी तो we'll let her in. Acha, so we are talking about the matrix operator. We've talked about the J operator. We've talked about S operator, right? SK components. We have been talking about SX, SY, SZ, right? ठीक है ना? So then we also talked about S ladder up, S ladder down. ये चीजें पढ़ रहे थे हम in the last class. You remember? So we were then deriving the Pauli's spin matrices. हमने last time कहाँ पे छोड़ा था? I can share that with you. Last time हमने छोड़ा था here. Can you see this? ये नजर आ रहा है ना आपको? नो मैम। आपको ये लास्ट वाला वो नहीं नजर आ रहा? लास्ट स्क्रीन जो हमारी लास्ट टाइम से थी, ये वाला। मैम ये जो आपने थोड़ी देर पहले जो लिखा ना, सिर्फ ये अब नजर आया है। अब नजर आ गया ना? तो ये हम कर रहे थे लास्ट टाइम, ठीक है ना? तो इसमें हम S प्लस लेडर अप ऑपरेटर जो है वो स्पिन के साथ उसको कर रहे थे कैलकुलेट, और उसके ये एक्सप्रेशन हमारे पास आया था। यहाँ से अब हम शुरू करेंगे, ठीक है? सही हो गया? Okay, so now I'll go back again to the board. Okay, so I'll erase these operators and then I'll continue with what we were doing last time. Okay. Okay. So the last expression we had was the ladder up spin operator, and we'll continue from there. The ladder up spin operator gives the matrix element of S plus, which depends upon the magnetic quantum number M prime. ठीक है ना? ऐसे था ना? S plus, it depends upon the, okay, it depends upon these. And M can have two values and M prime can take two values. So M can have two values, half and minus half. You know, M can be equal to half and minus half. And M prime can also be equal to half and minus half.
So using these, we can have 4 matrix elements can be formed. And we can also consider the case when m is not equal to m plus 1. Okay, so this is where we were last time. And now we continue with that. You have the expression for S plus. So Ma'am, m is not equal to m plus 1, m dash plus 1 पे 0 है. m prime plus 1. लेकिन मैम पे लास्ट 0 टाइम होगी हमने ना लिखा मैम, था. इक्वल टू लिखा था. यस मैम. हम डिफरेंट केसेस डिस्कस कर रहे हैं ना. पहले हमने ऊपर कंसीडर किया था जहाँ s इज इक्वल टू s प्राइम एंड m इज इक्वल टू m प्राइम प्लस 1. अब लेटर ऑन हम कंसीडर कर सकते हैं m इज नॉट इक्वल टू m प्राइम प्लस 1. ठीक है, हम डिफरेंट केसेस इसके कंसीडर कर रहे हैं, राइट? ओके, now you remember this expression we had last time, s plus s prime m prime is equal to s prime, ये छोटा s है, ठीक है, ये बड़ा s है, into s prime plus 1 minus m prime into m prime plus 1 under the root into h bar delta s prime delta m prime plus 1. ठीक है, okay. So let us consider the case in which we have both values. हाँ जी, ये लास्ट टू जो है वो डेल्टा एस 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 प्राइम और डेल्टा एम एम प्राइम प्लस 1 है ना. हाँ ये सबस्क्रिप्ट्स हैं सारी, ठीक है. नहीं, ये डेल है ना सारे. हाँ ये डेल्टा Last डेल्टा फंक्शन है. ओके मैम. ओके, इट्स द सेम. ये पिछली दफा से हम लिख रहे हैं एक्सप्रेशन, ये पहली दफा नहीं लिख रहे. ओके, सो s plus, if we consider the values half and half like this, then this should be equal to multiply by h bar into delta half and 3/2. हेलो Yes, मैम, ये जो आपने ब्रैकेट वाला टर्म लिखा है इसका ये कहाँ से आया है, प्लीज बता दे. कौन से ब्रैकेट वाला टर्म? मैम ये लास्ट टू अंडर रूट वाले टर्म्स. ये आपने पिछली क्लास नहीं अटेंड की आपने, आई होप उसके मटेरियल को पढ़ा हो, ठीक है. उसमें हमने ये वाली इक्वेशन लिखी थी, ठीक है. हाँ. तो यहाँ पे हम उसकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ठीक हो गया? ओके मैम. राइट, सो दिस इज इक्वल टू जस्ट अ मोमेंट, ये एक था और फिर दूसरा जो है, अच्छा इसके बाद दूसरा ये जो है दिस विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि डेल्टा फंक्शन जब ये दोनों वैल्यूज डिफरेंट होती है इट बिकम्स इक्वल टू 0. एंड यहाँ पे वैसे भी आप देख सकते हो 3/4 minus 3/4 विल बी इक्वल टू 0, ठीक है. So this is equal to 3/4 plus half into minus half plus 1 into h bar into delta half and half. So this is equal to 3/4 plus 1/4 h bar into 1. So this is equal to h bar. So similarly, we can say that s plus minus half and half is equal to 0, and s plus minus half and minus half is equal to 0.
मैम आपने यहाँ पे एच बार लिखा है और वहाँ पे 0। कहाँ पे एच बार लिखा मैम है ना, ये वाला, ये डिफरेंट वैल्यूज चेंज हो रही है ना, देखो यहाँ पे द वैल्यूज वी आर यूजिंग आर हाफ एंड हाफ, ठीक है। इसको जब सब्स्टिट्यूट किया हमने बड़े फॉर्मूला में, तो दिस इज व्हाट वी गेट। ये पहले केस में यहाँ पे 0 आया, फिर दूसरे केस हम डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ट्राई कर रहे हैं। आप देखो हमने ये वैल्यूज कहा था ना कि m की वैल्यूज हो सकती है हाफ एंड माइनस हाफ, m प्राइम की वैल्यूज हो सकती है हाफ एंड माइनस हाफ। अब हम उनके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस देख रहे हैं उनकी क्या वैल्यूज होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी एक कॉम्बिनेशन के साथ हमने देखा इसकी वैल्यू 0 आती है, दूसरे कॉम्बिनेशन के साथ हमने देखा इसकी वैल्यू h बार आ रही है, तीसरे कॉम्बिनेशन के साथ हमने देखा इसकी वैल्यू 0 आ रही है, चौथे कॉम्बिनेशन के साथ हमने देखा इसकी वैल्यू 0 आ रही है, ठीक है। ओके, सो ये सारी जो वैल्यूज हैं इनसे हम एक मैट्रिक्स बना सकते हैं, ठीक है। एंड ये मैट्रिक्स जो बनेगा इसमें हम रो एलिमेंट्स और वो क्या जिस तरह से बनाते हैं कॉलम एलिमेंट्स और रो एलिमेंट्स बनाएंगे। द वैल्यू ऑफ m जो है वो हम एक साइड पे ले लेंगे और वैल्यू ऑफ m प्राइम एक साइड पे ले लेंगे, तो ये बनाते हैं हम इस तरह से। सो दिस इज इक्वल टू, सो इस साइड पे हम m ले लेते हैं, इस साइड पे m प्राइम ले लेते हैं। So let us say this is half and this is minus half and this is half and this is minus half, और उससे जब हमने वो वैल्यूज डिराइव की तो we got 0, h bar, 0 and 0, ये वैल्यूज आई, तो ये हमारा मैट्रिक्स बनता है, ठीक है। So this is number 1. मैम ये कैसे लिखा है, s प्लस इज इक्वल टू? ये देखो ना, s प्लस को लिखा इन टर्म्स ऑफ द मैट्रिक्स बनाया ना इसकी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के लिए, m और m प्राइम की वैल्यूज के लिए, ठीक है ना। तो m और m प्राइम की जब वैल्यूज थी हाफ एंड हाफ, तो ये 0 आता था ना, ओके ठीक हो गया। इसी तरह जब इसकी वैल्यू थी माइनस हाफ एंड हाफ, अगेन 0 आता है। फिर जब वैल्यू थी हाफ एंड माइनस हाफ, यू गॉट h बार। और फिर इसको रिलेट करो ना, ये जो सारे एक्सप्रेशंस थे, हम क्या कर रहे हैं एक्चुअली, हम लास्ट टाइम से अगर आपको याद हो तो वी आर डिराइविंग द पॉलीज स्पिन मैट्रिक्स यस मैम, की डेरिवेशन कर रहे हैं, समझ आ गई अब? यस मैम। तो ये पहली मैट्रिक्स हमारे पास निकली है, ठीक हो गया। ओके मैम। मैम इस मैट्रिक्स की सिग्निफिकेंस क्या है? बेटा ये हम बाद में यूज करते हैं डिफरेंट चीजों को डिराइव करने के लिए। बेसिकली आपको पता है कि फॉर एग्जांपल द स्पिन प्रॉपर्टी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। जिस तरह से हमने एंगुलर मोमेंटम पढ़ा था ना, इसी तरह से स्पिन जो है वो भी आपके मैग्नेटिज्म को कंट्रीब्यूट करती है, आपके एंगुलर मोमेंटम को कंट्रीब्यूट करती है। आपको याद होगा कि अभी हमने J लिखा था, J इज इक्वल टू L प्लस S। तो पहले हमने L पढ़ा था, अब हम S पढ़ रहे हैं, ठीक हो गया। Okay, I'm going to erase this now, okay? Okay. Okay, so अभी हमने यूज किया था the operator s plus. Now we are going to use the operator s minus in the same way. So let us find the matrix element of s minus. In the same way जैसे पहले किया। So s minus के expression में we can substitute the values of m and m prime and we will get the expression . . 1 + 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2
Okay. So now again, m can have the values half and minus half, and m prime can have the values half and minus half. So therefore, when we substitute these values, we can have different combinations like we had before. So we can have, when you have a combination of half and half, this will be equal to 0 when you substitute it and find it. And similarly for half and minus half, this will be equal to 0. Okay, so for minus half and plus half, for minus half and minus half should be equal to 0, and minus half and half should be equal to h bar. ठीक है, अब आप देखते हो कि एक और मैट्रिक्स बन गया आपके पास. ठीक है, उसी तरीके से जैसे पहले S1 बना था, अब you will get a matrix for S minus, and this will be equal to so this is, let's say this is M, this is M prime, and this is half and minus half. Similarly, here you have half and minus half, and you will have 0, h bar, 0 and 0. Okay, so I'm going to erase the left hand side now. So हमारा क्या कर रहे थे हम, the topic we are doing is the derivation of the Pauli spin matrices. So we have just now calculate the matrices for S plus and for S minus. ठीक है? Okay. So we call this 1, we can call this 2. ठीक है? So इसके बाद we can see that for example the matrix for S1 S plus is equal to 0 h bar 0 0, and for S minus is 0 0 h bar 0. Okay. There's another method we can do. And this is, so you're going to take the adjoint, and the adjoint is defined as the conjugate transpose, right? So, acha, remember the bottom sign is plus, which is the ladder up, and the above sign is adjoint, which is the dagger. Okay, so a dagger can also be written as a conjugate transpose for a matrix. So this can be written like this. So this is equal to, you write the matrix, and then this will become okay, and you can finally have, okay, so this is 1. So you can see we started with S plus, we took the adjoint, and the adjoint for a matrix is defined as the conjugate transpose. Please pay attention to the symbols. You can see that the lower symbol is a subscript, which is a plus sign, which is representing the ladder up operator, and the upper symbol is a superscript. It is a dagger, which is representing the adjoint.
Now the adjoint, in order to process this, we know that this is the conjugate transpose. We write the matrix that we have, the S plus matrix, and then we took the conjugate, and then we took the transpose, and we get the S minus matrix. So this is another way that this can be done. एक्सप्लेन कर दे क्या, एक रिवीजन करा दे प्लीज। किसकी बेटा? कॉन्जुगेट की, कॉन्जुगेशन जो लेते हैं मैट्रिक्स की। अच्छा, उसमें मैंने सुना था कि हाँ हाँ, आपने क्या सुना था? इसमें मैंने सुना था कि जो एंट्रीज होती है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होती है हाँ, कॉन्जुगेट्स में। तो अगर कॉम्प्लेक्स नहीं होगा तो वो चेंज नहीं होगा, ठीक है ना? हाँ ठीक है। हाँ, तो हम लोग पहले जो ले रहे थे ना एडजॉइंट, हम लोग ले रहे थे वेक्टर्स के या ऑपरेटर्स के, ठीक है ना? अब हम मैट्रिसेस के ले रहे हैं। तो मैट्रिसेस में एडजॉइंट का मतलब होता है कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, ठीक है? तो अगर तो उसका कॉन्जुगेट बनता है तो ठीक है, नहीं बनता तो यू राइट इट एज इट इज, ठीक है ना? और फिर उसके बाद आप उसका ट्रांसपोज ले लेते हो। सही हो गया? ओके मैम, ओके, थैंक यू। अच्छा, अब नाउ S प्लस इज इक्वल टू Sx plus iota Sy, right? And S, ये वैसे ही चल रहा है जैसे आपने वो ऑपरेटर L पढ़ा था ना, उसी तरह से है। Okay, most of the things are similar, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस ये कि हम इसके मैट्रिसेस भी डिराइव कर रहे हैं, ठीक है? Okay, so this is now equal to 0 h bar 0 0, and this is equal to 0 0 h bar 0. Okay, so adding them we get and therefore this is equal to h bar can be taken common and you're left with 0 1 1 0. And so we can say that Sx is equal to h bar, this was 2, so this is over 2 into 0 1 1 0. So we can take this as equation number 3. Now हमने दोनों इक्वेशंस को ऐड किया, ऐड किया, प्लस किया, यस। ओके, क्योंकि आप इनको ऐड करोगे तो आपके पास ये कैंसिल हो जाएंगे, ये 2sx आ जाएगा ना, तो इससे आप sx की वैल्यू निकाल सकते हो, राइट? ओके, मैम ये हमने S प्लस और S माइनस वाली कैसे लिखी वैल्यू? मैट्रिक्स को ऐड किया है ना, और फिर वो जो sx ऐड हो गया है। नहीं नहीं, ये ऊपर वाली जो फर्स्ट टू मैम में एक मिनट, क्वेश्चन है राइट साइड पे। एक मिनट मैं इसको साफ कर लूं। ओके ज़मरान, ये आपको याद है कि हमने पहले जो एक्सप्रेशन लिखा था L के लिए वो इसी तरह से था ना? याद आ रहा है? हेलो, Lx प्लस aorta Ly। बिल्कुल उसी तरह से हम इसके लिए भी लिख सकते हैं ये एक्सप्रेशन, और ये मैट्रिसेस हमने अभी डिराइव किए हैं, ठीक है? ओके मैम, ओके ठीक। नाउ लेट्स, पहले हमने ऐड किया था, अब हम सब्ट्रैक्ट करने लगे हैं, राइट? वी आर सब्ट्रैक्टिंग देम, और सब्ट्रैक्टिंग करने से क्या हो रहा है हमारे पास? वी गेट 2 iota Sy is equal to 0 h bar minus h bar and 0. And this is equal to, you can take h bar common and you get 0 1 minus 1 and 0. So from here we can get the value of Sy. Sy is equal to h bar over 2 iota into 0 1 minus 1 and 0. So this is equal to minus iota h bar over 2, and this is 0 1 minus 1 and 0. So therefore we can say that Sy is equal to h bar over 2 into
0 minus iota into iota and 0. So this is equation number 4. अब हमने क्या किया है? When we added them, we got the Sx expression, ठीक है? And when we subtracted them, we got the Sy expression. ठीक हो गया? Okay. Now I'm going to erase. हाँ जी. I'm going to erase. Okay, ma'am. I'm going to erase the board. Okay. मैम ये लेफ्ट साइड रहने दें। आए. अच्छा मेरा एक्सप्रेशन फिर लिखना है मैंने अगला ना. मैं अटेंडेंस लेने लगी हूँ, तुम लिखो जल्दी से. ओके. अच्छा जी, लेट्स लुक एट द पार्टिसिपेंट्स. कौन कौन है हमारे पास? ओके. और ओके गुड. सो तहरीन. Present, अच्छा. ma'am. रबिया. Present, ma'am. Good. Mariam. Mariam is not here, right? Okay. Shaza. Shaza कहाँ चली गई है? Present, ma'am. Yes. Okay. Hadi. Yes, ma'am. Good. Usman. Yes, ma'am. Good. Haris. Yes, ma'am. Durdana. Yes, ma'am. Okay. Moiz. Moiz is not here today, right? And Mohsin is also not here. So Moiz and Mohsin are absent. Zamran. प्रेजेंट मैम। Shamjar. Yes, and Naseem is not here also. Atika. मैम शमजर ने चैट में कहा कि मैं प्रेजेंट हूँ। हाँ, शमजर का प्रेजेंट लगा लिया, नसीम एब्सेंट है। ठीक है, ओके फाइन। अब तो ठीक है ना, आप मिटा सकते हैं हम। जी मैम, कर दे इरेज। ओके मैम हमारी अब कितनी और क्लासेस होनी है? थक गए हो? मिस इस तरह से ना काफी मुश्किल होता है वैसे। मुश्किल हो रहा है मैम जी बहुत ज्यादा। आसान नहीं हो रहा कि अपने बिस्तर में बैठ के आप सुन रहे हो? नहीं मिस, मैम बिस्तर में थोड़ी बैठे हैं। बाज बच्चे बिस्तर में अब कौन सी सर्दी। बाज बच्चे आई मीन you don't have to like get up and travel and all that, है ना? वो चीज तो चेंज हुई है ना मैम, लेकिन वो चीज सही थी। मैम लेकिन इससे सही थी, वो इससे रूटीन एक बनी हुई थी। अच्छा चलो, इससे ना इंसान में काहली बड़ी आ गई। चलो आप दुआ करोगे ये सब ठीक हो जाए तो हम लोग वापस चले जाएं, ठीक है ना? नहीं मिस, फिर भी वैसे मैं पूछ रहा हूँ कब तक चलेंगी? वैसे मैंने आपको बताया मैं बस नेक्स्ट टॉपिक शुरू करूंगी, ये टॉपिक खत्म हो जाए ना ईद से वो पहले आप... तक हो जाएगी खत्म? हाँ इंशाल्लाह, आई एम ट्राइंग के हो जाए। ओके मैम। और मैम आपने असाइनमेंट भी नहीं अपलोड किया, आप कह रही थी 3-4 दिन मैंने तक। आपको बताया था, मैंने आपको असाइनमेंट देनी है और वो इम्पोर्टेंट असाइनमेंट है, ठीक है? उसकी वेटेज ज्यादा होगी, वो ध्यान से करनी है आपने। अच्छा मैम। मैं बना रही हूँ आपकी असाइनमेंट, ठीक है? मुझे टाइम लग रहा है क्योंकि मैं सबको सेम क्वेश्चन नहीं देना चाह रही। मैम आसान सी बनाइएगा। मैम आसान सी बनाए। बस इम्पोर्टेंट बात यही है कि आप उसको खुद करो और करने के अमल में आप सीखो, ठीक है ना? ठीक है। बस यही मकसद होता है असाइनमेंट देने का, मतलब। मैम सारे क्वेश्चन डिफरेंट देंगी सबको? यस, ठीक है ना? अच्छी बात है ना? यस मैम, अच्छी बात है। Okay. So let us take that S is equal to S prime is equal to half, then delta S prime is equal to 1. ठीक है? In this case, we can have that S set M prime is equal to M prime H bar delta M prime.
Now it will be non-zero. कहाँ लिखें? ये m prime है. So this will be non-zero for m is equal to m prime, otherwise it is zero. ठीक है ना, ये पता है ना आपको इस कंडीशन का. This will be for m is equal to m prime, otherwise it is zero. ठीक हो गया? Okay. So using these values, we can write that SZ half half is equal to equal to है, ठीक है? H bar delta half and half. So this is equal to half H bar. Similarly, SZ half minus half is equal to 0, and SZ minus half and half is equal to 0, and SZ my यहाँ पे wait. अच्छा, थोड़ी देर में मेरी वो बंद होने लग गया है ये, ठीक है? आपको पता है ना, फिर हम दूसरा स्टार्ट करेंगे. So this is minus half and minus half. So this is equal to minus half H bar. ठीक हो गया? अब ये यहाँ से हम मीटिंग को खत्म करते हैं और अगली मीटिंग स्टार्ट करते हैं. मैं आपको उसकी वो आईडी बता दूँ. मैम ये लास्ट पेज पे शो करवा दीजिएगा जरा. क्या शो करवाऊं आपको? ये वाली, ये जो लिखा है मैंने जी, ये वाला. अच्छा, सो आप आईडी लिखो 822 लिख रहे हो? 822 8176 9973. ठीक है? ओके मैम, लिख ली. लिख लिया ना? तो बस अब मैं ये वाली मीटिंग खत्म करती हूँ और अगली मीटिंग स्टार्ट करती हूँ.